Hello students. In this video, we will be discussing about one of the most important topics which is remaining in the chapter called as electrolysis. Electrolysis. Okay. So till now, we have discussed that the energies are interconvertible, just like we have discussed that chemical energy can be converted into electrical energy, and also electrical energy can be also converted back to chemical energy, isn't it? So they are interconvertible, as we have discussed. And also we have discussed that if chemical energy is getting converted into electrical energy, isn't it? So this process is actually done in the cell called as galvanic cell, done performed in a cell called as galvanic cell, है ना? Or it had also another name called as voltaic cell, isn't it? Where chemical energy was converted into electrical energy. Example of this galvanic or voltaic cell was or Daniel cell. Daniel cell was an example of galvanic or voltaic cell where the chemical energy was getting converted into electrical energy through chemical reactions. There were some chemical reactions and we had a salt bridge and all, isn't it? We have discussed in the previous classes. But now we are going to discuss about the second part, or the reverse conversion of electrical energy into chemical energy. Electrical energy into chemical energy. What we are going to do here is we are going to supply electricity through which there are some chemical reactions taking place in the cell, and now this kind of cell is actually referred as electrolytic cell, referred as electrolytic cell. So why it is referred as so? Because the process through which we are converting electrical energy into chemical energy, the process through which we are converting electrical energy into chemical energy is actually referred as electrolysis, actually referred as electrolysis. Through the process of electrolysis in an electrolytic cell, we are trying to convert electrical energy into chemical energy. So our point of discussion for today is how do we convert this electric energy into chemical energy. Okay, so now the point is, let us define this electrolysis technically. Okay, so very simple definition, I can say this can be written as the process of chemical decomposition, the process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of an electrolyte. किसका डिकम्पोज हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का. देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट. हु इज इलेक्ट्रोलाइट? द सॉल्यूशन थ्रू विच करंट इज और इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, है ना? इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन, है ना? थ्रू इट्स सॉल्यूशन. थ्रू इट्स सॉल्यूशन. ठीक है, कैसे करेंगे? यस, कमिंग टू द सेटअप. बोलते हैं सर इतना ही का डेफिनेशन और कुछ नहीं, वो लिख सकते हैं. गाइस वी कैन राइट एनी अदर डेफिनेशन, वी कैन राइट. चलो और एक थोड़ा सा अलग तरीका से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सेकंड डेफिनेशन, केमिकल चेंज means what? Either oxidation, I mean both oxidation and reduction दोनों एक साथ होते हैं because this is a time kind of redox reaction. Chemical change, oxidation and reduction occurring at electrodes, occurring at electrodes. Who are the electrodes? The rods which conduct electricity, anode and cathode. When electric current is passed through electrolytic solution, when electric current is passed through electrolytic solution. Simple है ना?
when electric current is passed through electrolytic solution. ठीक है, सो दो डेफिनेशन आपको दे चुका हूँ. नाउ कमिंग टू द सेटअप, उसका सेटअप कैसे होता है. See, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है. वी कैन टेक द इलेक्ट्रोलाइट्स विच विल हेल्प अस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और क्या ले सकते हैं इस, वी कैन हैव इलेक्ट्रोड्स पुट इन दिस. ठीक है, electrodes are rods which conduct electricity and they should be connected to a DC source. This is a DC source, direct current, है ना. Why? Because we need to divide this as plus and minus, ना, anions and cations, isn't it? So we need a DC source, direct current. We cannot take an AC source. Why? Because AC source, DC का क्या होता है ना, you can separate the charges plus and minus, but in AC source you cannot separate. Do you agree? In AC source what happens, we have a frequency just like our household frequency which are using our household with which you are using our household appliances, which is having a frequency of 50 hertz, which means what, in every second there is 50 plus and 50 minus, दोनों प्लस भी आता है माइनस भी आता है एक साथ, मतलब अल्टरनेट आता है, तो आपको डिवाइड नहीं कर पाओगे प्लस माइनस को, है ना. एवरी सेकेंड में प्लस 50 बार प्लस होगा, 50 बार माइनस होगा, इसलिए आप पता नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे. बट यहाँ पे पूरा सेपरेट कर पाएंगे. बड़ा वाला क्या होता है गाइस, पॉजिटिव होता है. बड़ा वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है. छोटा वाला जो क्या होता है वो आपका नेगेटिव होता है ना. तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है क्या, एनोड एंड कैथोड, है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, एसी सोर्स को नहीं ले सकते हैं, ओनली डीसी सोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि हम प्लस माइनस सेपरेट कर सकते हैं. वंस प्लस माइनस सेपरेट होगा तब जाके ये इलेक्ट्रोलाइट का जो आपका आयोन्स होंगे, दे विल get attracted towards plus and minus according to their opposite charge, है ना. yes, तो इसलिए हमें यहाँ पे डीसी करंट लेना ही होता है, डीसी सोर्स लेना ही होता है. ठीक है. yes, now the point is किसको एनोड लें किसको कैथोड लें. ठीक है. तो हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आए थे, है ना. तो गैल्वेनिक सेल के हिसाब से एनोड कौन था अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल मतलब जो इसका ऑपोजिट वाला, है ना, जो इसका ऑपोजिट काम करता है. क्या काम है इसका, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, उसका काम यही था. तो ये जो हमने लिया था गैल्वेनिक सेल, तो इसमें एनोड कौन था, एनोड आपका नेगेटिव वाला था. ठीक है. एंड कैथोड आपका पॉजिटिव वाला था, ये था ना. सो मैं आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि एनोड मतलब नेगेटिव है, कैथोड मतलब पॉजिटिव है. मैं आपको एक पॉइंट बताया था, होप आप याद रखे हो. देखिए, एनोड एंड कैथोड इज नॉट डिसाइडेड बाय द पोलैरिटी ऑफ द रॉड्स बट विद द नेचर ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट दैट इलेक्ट्रोड. फिर से बता रहा हूं, द पोलैरिटी ऑफ रॉड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसका नाम एनोड एंड कैथोड, बट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन दैट रॉड. नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब आपको पता है ना, इधर ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा. ठीक है. तो मैं आपको ये एक पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था गाइस, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं. याद रखिएगा, लाइफ टाइम तक याद रहना चाहिए. एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये ओए आप जैसे याद रख सकते हो. देन यू हैव यू नो रिडक्शन. रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है. ठीक है. आरसी, आरसी, CR class representative, RC is your, you know, what is that, you know, RC book बोलते हैं ना, वो ट्रैवल पास में they check this RC book, registration card. RC means registration card. yes, याद आया. So RC या CR आप जैसे भी याद रख सकते हो, अगर एक भी याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है. सो एनोड इज दैट रॉड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड इज दैट रॉड जहां पर रिडक्शन होता है. इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा. ठीक है गाइस. यस, कम टू द पॉइंट हियर. नाउ सपोज आई एम टेकिंग दिस सॉल्यूशन, है ना, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है. देखिए, ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, मोल्टन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मोल्टन फॉर्म में. ठीक है.
एक्वा सोल्यूशन हो सकता है या मोल्टन फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या कर सकते हैं, करंट को पास कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर पानी नहीं डालेंगे तो कभी कभी आयंस नहीं बनेंगे। No, we don't. If we don't have water, then there are no formation of ions. If there are no formation of ions, there will be no conduction of electricity. ऐसे करके हम लोग कभी कभी सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। मोल्टेन फॉर्म में भी क्या होता है, आपका एनर्जी मिलने पर आपका आयंस फ्री हो जाते हैं। वंस आयंस गेट फ्रीड, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, सो एक्वा सोल्यूशन हो सकता है या मोल्टन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट ये है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है आपका इलेक्ट्रोड्स के बारे में। आपका इलेक्ट्रोड्स जो है इसके अंदर, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दूसरे आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है, ये लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर्ट मतलब साधु है, आपको पता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। आपको सेटअप समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, बताइए। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। CrAO, AO इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, CR इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इजंट इट। तो ऐसा करके आप शॉर्टकट जैसे याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, यस, लेट अस कम टू सम एग्जांपल्स, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे, यस, एग्जांपल्स। ठीक है, suppose let us take some of our NCERT examples only, so that you may not get confused and you have a point to refer with that. Okay, yes, so coming to our NCERT examples only, first one, if we use molten NaCl, first example is molten NaCl. Okay, molten NaCl मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट किसका फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन NaCl। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हम क्या लेंगे, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, जनरली सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पे होता है, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ना पार्टिसिपेट करने पर वो गड़बड़ हो जाता है। आप जो चाहते हो प्रोडक्ट्स पाने के लिए केमिकल एनर्जी के थ्रू से, केमिकल रिएक्शन के थ्रू से, वो शायद कभी कभी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यस, सो मोल्टन NaCl प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो अगर ये कॉम्बिनेशन हमने लिया, suppose we have इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, एंड इसमें आपका मोल्टन NaCl रखा हुआ है। आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लिए हो। सो हु आर द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के जगह में आप किसको ले सकते हो, टेक प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर इनर्ट, साधु है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। आपका DC सोर्स है रेडी। ठीक है, दीज आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, यस, सो चलो हम करते हैं इसके ऊपर। करंट जब पास करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्विच होगा, जो कि यहाँ पे भूल गया मैंने देना। स्विच पहले से क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा, शॉक से तो नहीं बनना है। स्विच पहले से ऑफ है। ठीक है, तो आप इसको जब कनेक्ट करेंगे, की समझ सकते हो, स्विच समझ सकते हो, इसको जब कनेक्ट करेंगे देन करंट फ्लो होना शुरू होगा। यस गैस, सो हमारे पास क्या हो गया है, वी गॉट ए की, है ना। सो ये जो की है हमें हेल्प करेगा, जब आप ऑन करना चाहेंगे ये हमें हेल्प करेगा। आप क्या करोगे, इसको बंद कर देना। ठीक है, सो जब करंट पास होना शुरू होगा तब क्या होगा गाइस, देखिए आपने क्या रखा है, मोल्टन NaCl, ओनली NaCl है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास Na प्लस आयंस मिलेंगे एंड Cl माइनस आयंस मिलेंगे, है ना। करंट पास होने पर क्या होगा, मोल्टन NaCl का ब्रेक हो जाएगा वैसे, एंड ये जो Na प्लस है किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, है ना, नेगेटिव। Cl माइनस किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, रॉड की तरफ। सो इसमें से नेगेटिव कौन है, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसके पास कौन आएगा, Na प्लस जाएगा, सॉरी
Na प्लस यहाँ जाएगा, प्लस के पास थोड़ी ना प्लस जाएगा, है ना। सो Na प्लस कहाँ जाएगा, इधर आएगा माइनस के पास, ठीक है। एंड Cl माइनस कहाँ आएगा, पॉजिटिव के पास, ऐसे आएंगे, है ना। सो नाउ व्हेन दे कम टुवर्ड्स ईच अदर, द पॉइंट इज, देखिए जो पॉजिटिव रॉड है, जो आपका पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव रॉड का मतलब क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रॉड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रॉड के पास कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच आयन आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच आयन। इलेक्ट्रॉन रिच आयन कौन है, आपका एनायन। आपका आयन कौन है, Cl माइनस। आके क्या करेगा, क्यों आया बताइए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया है। इलेक्ट्रॉन जब देने के लिए आएगा, वैसे क्या होगा, दो Cl माइनस मिलेंगे, दो Cl माइनस मिलेंगे एक साथ, ठीक है। Cl2 बना के दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, है ना। तो आप बोलेंगे सर दो Cl नहीं आएगा तो काम नहीं हुआ क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक Cl भी अगर लेके आ रहे हो तो चलेगा। एक सेल क्या करेगा, हाफ Cl2 बनाएगा बाय रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पर, पॉजिटिव रॉड के ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, -1 से चार्ज जीरो हो गया, -1 से चार्ज जीरो हो गया। -1 से चार्ज जब जीरो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड वैसे इधर भी देख सकते हैं, एक के लिए भी चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस, ठीक है। मैं आपको बताया था, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। सो Cl माइनस कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। Cl माइनस कहाँ गया था, डायग्राम के हिसाब से देखिए, पॉजिटिव के पास गया था। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो आपका क्या बनेगा, एनोड, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव क्या था, गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव कैथोड था। यहाँ पे कौन है, एनोड है, चेंज हो गया ना थोड़ा। तो नेगेटिव क्या होगा यहाँ पर, कैथोड होगा। सो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का नाम अलग है। यहाँ पे एक प्रूव हो गया, प्रूव कर दिया मैंने आपको, ठीक है। मैं आपको लास्ट में फिर समरी दे रहा हूँ। फिर Cl माइनस का हो गया। कमिंग टू Na प्लस, तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, दिस इज अ रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। वैसे कमिंग टू रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, अगर यहाँ पर देखा जाए, कैथोड कौन है गाइस, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। अगर पॉजिटिव वाला जाएगा, Na प्लस जाएगा, क्या करेगा, जाके वहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, तो क्या बनेगा, Na बनेगा, ठीक है। Na प्लस कहाँ पे था, मोल्टन स्टेट में था। एक्वस नहीं लिखेंगे, मोल्टन स्टेट। कभी कभी Ms लिखते हैं, कभी कभी छोड़ ही देते हैं, ये क्या बन जाता है, सॉलिड। Cl माइनस भी आपका Ms मोल्टन स्टेट में था, ठीक है। एंड वो क्या बन जा रहा है, अभी गैस बन जाता है। Cl2 क्या होता है, गैस होता है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, Na प्लस अगर देखा जाए, +1 से 0, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। तो रिडक्शन यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर, द प्रोडक्ट्स आर, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे कौन आया, क्लोरीन गैस, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पे कौन आया, सोडियम मेटल, ठीक है ना, क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल। ये एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन पर ऐसे मिले, ठीक है गाइस। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि एनोड एंड कैथोड का चक्कर, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कौन है, एक अच्छा कलर चुनिए रेड के साथ जो मैच करता है, ब्लू, है ना। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हु इज एनोड, एनोड जो है आपका पॉजिटिव है। हु इज कैथोड, कैथोड जो है आपका नेगेटिव है। कमिंग टू galvanic सेल,
जो कि उसका ऑपोजिट काम करता है। इसमें क्या है गाइस, एनोड इज नेगेटिव इसके हिसाब से, कैथोड इज पॉजिटिव। ये सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए सर भूल जा रहा हूँ कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं गाइस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कैथोड पे रिडक्शन होता है, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो दिस इज अ यूनिवर्सल वे टू रिमेंबर एनोड एंड कैथोड इन बोथ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, प्रोडक्ट्स भी हो गया, रॉड्स के बारे में भी हो गया, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, मोल्टन NaCl। कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स बढ़ते बढ़ते आपका इंटरेस्टिंग थिंग्स बढ़ते जाएगा, इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, कंपटीशन भी होने वाला है अभी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग सा एक एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे, एक्वस NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, NaCl लेना है प्लस वाटर लेना है। इस बार पहले केस में मोल्टन NaCl खाली NaCl था, यहाँ पे लेकिन क्या है, NaCl भी है और वाटर भी है। ठीक है गाइस, यस। चलो तो क्या होगा, तो अभी इस बार सॉल्यूशन में क्या क्या है, NaCl एंड वाटर दोनों है। सो इस केस में अगर हम रफ सा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं, सो इस बार क्या है ना, सॉल्यूशन में नमक भी है और पानी भी है, एंड यू हैव रॉड्स। ठीक है, एंड इसके थ्रू से हम क्या करेंगे, करंट पास करते हैं। स्विच वगैरह भूल जाओ अभी के लिए, है ना, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है, सो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है किसका, NaCl भी है एंड वाटर भी। जब आप इसको इसके थ्रू से करंट पास करेंगे, आपको पता है ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, पता है आपको, है ना। सो इस केस में क्या होगा गाइस, देखिए whenever the current is passed, पॉजिटिव नेगेटिव जब हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कैसे कंपटीशन, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है अभी। तो NaCl जो है आपको पता है ये टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस से। और वाटर भी ना चाहता है कि अब इस बार मैं भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। पहले क्या था, पहले केस में खाली NaCl था, मोल्टन NaCl लिए थे, खाली मेल्ट कर दिए थे। लेकिन इस केस में पानी डाल दिए तो पानी बोलेगा अगर NaCl अगर ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। नाउ द पॉइंट इज देखिए क्या होता है, देखिए अगर मैंने रिएक्शनेट एनोड लिखूंगा, दो रिएक्शन होता है ना, एनोड पे एक होता है, कैथोड पे एक होता है, रिएक्शनेट एनोड। हाँ और एक बात जो बोलना भूल गया, यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड्स लिए हो, क्या कौन सा इलेक्ट्रोड्स लिए हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का काम पता है आपको, साधु हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का रिएक्शन नहीं करते हैं, अपना अपना चुपचाप रहते हैं। एग्जाम्पल जनरली हम लोग प्लेटिनम को लेते हैं, बेस्ट यही है, और बाकी सब कहीं ना कहीं रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लिए हैं। सो रिएक्शनेट एनोड, एनोड मतलब क्या है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड मतलब आपका पॉजिटिव है। ठीक है, सो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, माइनस जाएगा, कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा ना, Cl माइनस, यस, तो Cl माइनस जाएगा। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट कि Cl माइनस के साथ और कौन जाएगा, Cl माइनस के साथ साथ पानी भी रहेगा वहाँ पे, है ना। तो पानी भी बोलेगा कि Cl माइनस अगर ऑक्सीडाइज हो पा रहा है, कैसे ऑक्सीडाइज होता है आपको पता है, हमने रिएक्शन लिखा था, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके वो न्यूट्रल बन जाएगा, है ना। हाफ शेल्ड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही Cl माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका
Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वैसे वाटर भी बोलेगा हम भी ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका क्या क्या बनेंगे पता है, ये प्रोडक्ट्स देखिए, O2 बनेगा गैस, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। देखिए H2 में से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो ऑक्सीजन का साइड से। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन ना, समझ में आया। H2 में से आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो H2O का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन जब होगा तो O2 गैस प्लस आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, कैसे रिमूव करोगे, H प्लस के रूप में रिमूव करोगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्यों, देखो आपको पता है ना ये इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ। जब आप H2 में से, एक्चुअली यहाँ पे 2H2 होगा, आप जब H2 में से एक ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर दे रहे हो, आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बाहर रिमूव कर दे तो ऑक्सीजन बच रहा है, तो हाइड्रोजन को कैसे रिमूव कर रहे हो, H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज करना पड़ेगा ना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, H2O can be written as half O2 plus 2H plus plus 2 electrons, both are correct। ये ऊपर वाला रिएक्शन जो नीचे वाला रिएक्शन का 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, बोथ आर करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यस। तो इस केस में आपका कैसे पता करेंगे, दोनों में से देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों आ गए ऑक्सीडेशन होने, एनोड पे क्या होने, ऑक्सीडेशन होने या ऑक्सीडाइज होने। सो ये जो ऑक्सीडाइज होने आ गए, लेकिन दोनों तो बेचारा नहीं कर सकता ना, रॉड रॉड बोलेगा आप दोनों आ जा रहे हो, मैं किसको करूंगा अभी, है ना। सो इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज वन टाइप ऑफ स्पीसीज। ना इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन जो है, इन दोनों को कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा हम अभी देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कंपटीशन में कौन जीतेगा पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। तो इसका ई नॉट वैल्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखा जाए, ई नॉट वैल्यू, ई नॉट क्या है, ई नॉट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से हमें देखना है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, डाटा निकालने वाले हैं, ठीक है, डाटा निकालने वाले हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आप जब इसको इतना लिख रहे हो, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल है ए नॉट, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ रहा है अराउंड 1.36, ठीक है। एंड वाटर के लिए एक मिनट, दो है ना, क्लोरीन माइनस भी है एंड वाटर के लिए वाटर भी है। सो वाटर के लिए आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, हाँ, ये जो हमें दिया है ना वैल्यूज, ये हमें जो वैल्यूज दिया है वो सब SRP वैल्यूज हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से कितना होगा, SRP ऑक्सीडेशन के हिसाब से क्या होगा आपको पता है, माइनस, SOP इज माइनस ऑफ SRP, है ना। तो SRP का वैल्यू 1.36 कहाँ से मिला मुझे, टेबल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिला। वैसे पानी का भी SOP कितना होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा गाइस, दिया है वैल्यू 1.23, मैं आप कहाँ से देख रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। SRP का वैल्यू 1.23, तो SOP कितना होगा, माइनस 1.23 होगा, क्योंकि SOP इज माइनस ऑफ SRP, ठीक है। सो ये दोनों पोटेंशियल वैल्यूज से देखिए आपको पता है कि मोर इज द SOP, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, हमने पढ़ा था पहले। आपको अगर याद भी नहीं है तो उसका डेफिनेशन से समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने का ताकत ज्यादा है, क्या होने का ताकत ज्यादा है, ऑक्सीडेशन होने का ताकत ज्यादा है। सो मोर इज ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। इन दोनों में से देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, -1.23 ज्यादा है कि -1.36 ज्यादा है, देखिए ध्यान से, -1.23 ज्यादा है कि -1.36 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, -1.23 ज्यादा है ना।
नेगेटिव वैल्यू में देखिए -1.23, इसलिए कौन जीतेगा इन दोनों में से? वाटर जीत जाएगा, Cl माइनस हार जाएगा, क्योंकि वाटर हैज मोर एसओपी, H2O हैज मोर एसओपी, then what? Then Cl minus. Therefore, oxidation of water takes place. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? अगर इसका ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीजन, therefore I can say oxygen is formed at कहाँ पर है, ये चल रहा है एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो ऑक्सीजन बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो वैल्यूज मैं अब जो साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर एसओपीस। एसओपी क्या होता है आपको मैं टेबल से देखा एसआरपी, दोनों का एसआरपी वैल्यू कितना दिया गया था पता है? देखो मैं फिर से अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज। ठीक है, मुझे दिया गया था, आई मीन वैल्यूज दिया गया था फ्रॉम द टेबल, कितना कितना दिया गया था पता है? दिया गया था कि H2O का एसआरपी वैल्यू कितना है, 1.23 दिया गया था, एंड क्लोरीन का एसआरपी वैल्यू दिया गया था 1.36। तो इन दोनों में से मैं देखा, मुझे पता चला कि मुझे एसओपी चाहिए इस बार। आप बोलेंगे सर ये एसआरपी नहीं ले सकते थे क्या? हाँ, एसआरपी भी ले सकते थे, एसआरपी भी ले सकते थे। अगर आप एसओपी की जगह में एसआरपी लेना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा उल्टा सोचना है, क्योंकि एसओपी एंड एसआरपी बोथ आर ऑपोजिट ना। Cl माइनस का आप क्या लेते हैं? 1.36 लेते हैं और इसको 1.23 लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए? जल्दी ऑक्सीडाइज होने वाला चाहिए ना। इन दोनों में से जिसका एसआरपी ज्यादा है, किसका एसआरपी ज्यादा है? इसका एसआरपी ज्यादा है। अगर इसका एसआरपी ज्यादा मीन्स व्हाट, ये जल्दी रिड्यूस होगा ना, है ना। 1.36 ज्यादा है मीन्स व्हाट, Cl माइनस जल्दी रिड्यूस होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एसआरपी ज्यादा मीन्स व्हाट, मोर इज एसआरपी, मोर इज अ रिड्यूसिंग टेंडेंसी, मोर इज एसआरपी, मोर इज अ रिड्यूसिंग टेंडेंसी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए वो Cl माइनस रिड्यूस होगा, Cl माइनस रिड्यूस होगा एंड वाटर आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आप एसआरपी वैल्यू से भी देख सकते हो या उसको एसओपी कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, इसे हमने देखा है ये एग्जांपल में। क्लियर गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज, सबके सब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, यस। नाउ द ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl is very high, concentration of NaCl is very high। मतलब क्या है, पानी कम है ना, पानी कम है इसलिए सॉल्वेंट कम है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट कम है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट ज्यादा है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पर क्या होगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए Cl माइनस एंड H2 के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, 1.23 1.36, ओनली द डिफरेंस इज 0.13, ओनली द डिफरेंस इज 0.13। तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों आस पास में है तो कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मैटर करता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर ऐसे दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज वेरी हाई, तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वाटर आपको क्या करना चाहिए, Cl को कंसिडर करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर, we should oxidize whom, we should oxidize chlorine। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा है ना, NaCl में Cl है ज्यादा है, जब क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका SOP भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? ठीक है,
सो ये अगर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज वेरी वेरी हाई करके मेंशन किया है, तो आपको उल्टा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगा, प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगा, Cl2 इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट ये कहाँ पर रिएक्शन देख लिया हमने, रिएक्शन एट एनोड देख लिया। नाउ कमिंग टू रिएक्शन एट कैथोड, नाउ कमिंग टू रिएक्शन एट कैथोड। इंटरेस्टिंग है ना, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, कौन जीतेगा, राइट, यस। सो कैथोड पे कौन कौन है गाइस, अभी पता है आपको, वी हैव अगेन टू थिंग्स, है ना, जैसे कि वी हैव Na प्लस, वी हैव वाटर, वी हैव Na प्लस एंड वी हैव वाटर। सो अगेन आपको क्या करना है, अगेन द सेम, Na प्लस अगर रिड्यूस होगा, कैथोड पे क्या होता है गाइस, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो जब कैथोड पे रिडक्शन होता है आपको पता है, एंड यहाँ पे ये दोनों आएंगे रिड्यूस होने के लिए, जब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। ये किसमें था, कोस में था, है ना। तो इसको रिड्यूस होने के लिए कितना पोटेंशियल लग रहा है पता है, -2.71। ये SRP है, हमें SRP चाहिए ना, रिड्यूस हो रहा है ना, तो क्या चेक करना है, दोनों का किसमें से ज़्यादा SRP है, -2.71 वोल्ट, समझ रहे हैं, यस, -2.71 वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे दूसरा केस में आप अगर H2O को देखेंगे, H2O अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा पता है, ये बोलेगा कि H2O हम भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे। अगर ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा पता है, हाफ H2 प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एंड इसका SRP वैल्यू फ्रॉम NCERT सीरीज इज -0.83 वोल्ट, ठीक है, -0.83 वोल्ट, ठीक है गाइस, यस। तो अगर ऐसा हालत है तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, दोनों में से कंपटीशन, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पे क्या देखना है, मोर इज द SRP वैल्यू, यहाँ पे लिख सकता हूँ, मोर इज द SRP वैल्यू, क्या होगा, मोर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर इज द SRP वैल्यू, मोर इज द टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो कौन, किसका SRP वैल्यू ज्यादा है, -0.83 ज्यादा है कि -2.71 ज्यादा है, -0.83 ज्यादा है। सो यहाँ पे कौन होगा, फिर से वाटर जीत गया, वाटर reduces into what, H2। तो प्रोडक्ट क्या है कैथोड पे, प्रोडक्ट formed at cathode is hydrogen, प्रोडक्ट formed at cathode is hydrogen, क्लियर ना। तो क्या बोलेंगे सर, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो, पिछले केस में जैसा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बाबा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन SRP इज वेरी वेरी हाई। कितना डिफरेंस देखो, -0.83 कहाँ है, -2.71 ज़्यादा कहाँ है। सो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर भी हमेशा H2 ही बाहर आएगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं ऑल टुगेदर, हमारा एनालिसिस क्या क्या हुआ, प्रोडक्ट्स एट, ये तो पक्का हमेशा एट कैथोड, एट कैथोड आप लो कॉन्सेंट्रेशन लीजिए या हाई कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, हमेशा क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट कैथोड पे हाइड्रोजन ही मिलेगा, H2 H2। ये पिछले वाला केस। एट कैथोड अगर लिया जाए, सॉरी एट एनोड अगर लिया जाए, लास्ट केस, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन किसका बात कर रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बात कर रहे हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के जगह में कौन जीत जाएगा, देखिए
लो कॉन्सेंट्रेशन जो पहले कंसिडर किया था कौन जीत जाएगा, वाटर जीत जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन, तो कौन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन में Cl2 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन बनेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में Cl2 बनेगा। तो आपका मर्जी, आपको अगर H2 एंड ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करोगे, लो कॉन्सेंट्रेशन ले लेना। आपको अगर H2 एंड Cl2 चाहिए तो क्या करोगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लेना। समझ गए गाइस, कितना आसान है ना। सो ये है आपका ट्रिक, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यू नीड टू कंपेयर द SRPs एंड SOPs। मैं आपको फिर से कंक्लूजन दे रहा हूं। क्या करना है, एनोड पे जीतने के लिए, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में जीतने के लिए क्या होना चाहिए, SOP ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन है ना, SOP ज़्यादा होना चाहिए और SRP कम होना चाहिए। कहाँ से पता करेगा वैल्यूज, टेबल से पता करेंगे, ठीक है। सो टेबल से जब पता करेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको टेबल याद है ना, देखिए कैटॉन्स के लिए आपको याद है ना, मैं आपको शॉर्टकट दिया था। लाइट का बैटरी का नाम आलमियाओ जी केयर ले रहे थे, फिर सीडी को नहीं सुनना प्लीज, देन हाइड्रोजन, देन कॉफी सर्व्ड हॉट इन सिल्वर एंड गोल्ड कप्स, है ना। ये करके आपको बता दें सब मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं, है ना, उसके लिए मैं बता दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। एंड ये जो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन के लिए आप क्या देखोगे, रिडक्शन में कौन जल्दी जीतेगा, जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है एंड SOP वैल्यू क्या है, कम है। SRP ज़्यादा है, SOP कम है। तो ये एग्जाम्पल हमने अच्छा से डिस्क्राइब करके डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज, देखिए तो आपको ये SRP SOP कहाँ से पता चलेगा, मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक दे चुका हूँ टू रिमेंबर। ये आपको वैल्यूज दिया रहेगा क्वेश्चन पे और यू नीड टू रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज आई हैव ऑलरेडी गिवन द ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ट्रिक टू रिमेंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से आप याद कर लोगे, किसके लिए स्पेशली, कैटायंस के लिए, फॉर कैटायन स्पेशली K प्लस Na प्लस। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा है K प्लस एंड Na प्लस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कौन रेड्यूस होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताया था ट्रिक क्या है, लाइट का बैटरी का नाम, लाइट का बैटरी का नाम ऐसा था ना। तो लिथियम का वैल्यू कितना था, लिथियम का वैल्यू आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव था। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मतलब SRP वैल्यू क्या है, सबसे कम था। इतना तो आपको याद रखना है ना, -3.05 सबसे कम, SRP सबसे कम। पोटेशियम का थोड़ा बाद और ऊपर से नीचे SRP का वैल्यूज क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये तो आपको याद होना चाहिए ना, SRP वैल्यूज क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सबसे नीचे किसका है, फ्लोरीन का है, सबसे नीचे किसका है, फ्लोरीन का है, नॉन मेटल है वो, है ना। उसका कितना होता है, +2.87 वोल्ट, है ना। जो आपका NCERT में जो है टेबल, उसको हमने घुमा के याद किया है, उसको हमने घुमा के याद रखा है, ठीक है। सो पोटेशियम एंड किस किस का कंपैरिजन चल रहा है, पोटेशियम एंड Na प्लस का कंपैरिजन चल रहा है। तो आपका ये शॉर्टकट आपको याद है, पोटेशियम एंड सोडियम का अगर दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से SRP किसका ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो सोडियम का ज़्यादा होगा। अगर सोडियम का ज़्यादा होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि Na प्लस का फ्रॉम द टेबल क्या है, SRP ज़्यादा है। Na प्लस का टेबल में देखा जाए तो SRP ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा गाइस, रेड्यूस हो जाएगा। कितना आसान है ना। ये आपका किसके लिए बताया था, कैटायंस के लिए। कुछ एनायंस है ना, जो कि आपको दिखेंगे, Cl माइनस दिखेगा, OH माइनस दिखेगा, ठीक है, SO4 2 माइनस दिखेगा, Br माइनस दिखेगा, I माइनस दिखेगा, है ना, PO4 3 माइनस दिखेगा, ये सब दिखेंगे आपको। सो ये सब जब दिखेंगे तो आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए याद रखने के लिए। ये जो है आपको 2 माइनस PO4 3 माइनस, ये लोग जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये 2 माइनस एंड 3 माइनस वाले जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। आप देखिएगा टेबल पे ये दोनों आपको कभी दिखेंगे नहीं, तो कौन दिखेगा आपको टेबल में, ये तीनों दिखेंगे, Cl माइनस दिखेगा,
Br माइनस दिखेगा, I माइनस दिखेगा, F माइनस भी दिखेगा, सारे हैलोजेंस दिखेंगे, है ना। ये हैलोजेंस का देखिए, ये हैलोजेंस कहाँ ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, हैलोजेंस में क्या स्पेशलिटी है, उनका नेम में उनका स्पेशलिटी है। हैलोजेंस मीन्स व्हाट, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, हैलोजेंस मीन्स व्हाट, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। तो ये जो हम लोग सॉल्ट डिस्कस करते हैं ना, ये ऑब्वियसली सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए ये आयंस पक्का उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे कम कौन दिखेगा, ये F माइनस वाला सबसे कम दिखेगा, लीस्ट दिखेगा, ये सबसे कम दिखेगा, तो इसका टेंशन नहीं है। हम फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। एंड ये SO4 माइनस PO4 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, याद रखिए। तो एक पॉइंट मैं सबसे बता रहा हूं कि SO4 माइनस एंड PO4 माइनस का हाई SRP है। हाई SRP मतलब क्या है, लो SOP, लो SOP मीन्स व्हाट, डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। आयन को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था ना, माइनस से जीरो होना है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। सो क्यों नहीं होगा हम लोग आगे में अच्छा से डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए आगे इन द सेंस कभी हम लोग जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज़ है इंटरनल चीज़ जो कि अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ SRP एंड SOP खाली समझना है, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। सो हाई SRP होता है, लो SOP इसलिए डजंट ऑक्सीडाइज, इसलिए अभी कौन बचा है गाइस, ये सब बचा है। OH माइनस का टेंशन नहीं लेना है, OH माइनस का हम लोग डायरेक्ट पानी का ले लेते हैं ना, पानी का ही डायरेक्ट ले लेते हैं, पानी का ऑक्सीडाइज होना ले लेते हैं, पानी को तोड़ते नहीं है। कुछ कुछ बुक्स में गाइस, कुछ कुछ बुक्स में क्या करता है ना, पानी को तोड़ देता है, जब करंट पास होता है ना तो H प्लस एंड OH माइनस से तोड़ देता है, तब उसको आपको कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज करने के लिए। एंड ये जो OH माइनस फिर वापस में आप देख चेक करोगे दूसरा आयंस के लिए, है ना, कुछ कुछ बुक्स में तोड़ देता है। हम H2O को तोड़ते नहीं है, हम H2O को तोड़ते नहीं है, हम H2O को जैसे था वैसे रखेंगे। देखिए दोनों केस में मैं H2O को तोड़ा नहीं, देखिए इस केस में देखिए रिएक्शन एट एनोड, H2O को जैसे था वैसे ही रखा ना, तब यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन निकला, ठीक है। वैसे जब हमने यहाँ पे एनोड पे देखा, कैथोड पे देखा, तो इधर भी H2O को मैं तोड़ा नहीं, H2O देखिए एक इलेक्ट्रॉन में लेके रिड्यूस हुआ है ना, समझ में आ रहा है ना। तो H2O को जैसे था वैसे ही रखिए, OH माइनस को सेपरेट मत कीजिए, सेपरेट करने पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो OH माइनस को सेपरेट नहीं करेंगे तो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बाकी कौन बचे हैं, हैलोजेंस बचे हैं। ये हैलोजेंस का ऑर्डर को कैसे याद रखें, ये हैलोजेंस का ऑर्डर को कैसे याद रखें, कौन कौन बचा है आपका, I माइनस बचा है, Br माइनस बचा है, Cl माइनस बचा है, F माइनस बचा है, ठीक है। इन लोगों को कैसे, इसको याद रटना मानना पड़ेगा कि ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि कैसे करना है। देखिए बहुत सी सिंपल सा बात है, आपको पता है पूरा सीरीज में ना फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 है ना, उसका 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2F माइनस जब बनता है तो उसका SRP वैल्यू कितना है पता है, SRP वैल्यू है आपका 2.87, सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है पूरा सीरीज में, सबसे हाईएस्ट है। तो इसका SRP सबसे हाईएस्ट है, मतलब क्या है, ये जल्दी क्या हो रहा है गाइस, ये जल्दी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये जल्दी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। F2 0 से 1 माइनस बनने के लिए बहुत आतुरता है इसका, बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी रिड्यूस होने का कारण क्या है, बहुत सिंपल है गाइस। आपको पता है फ्लोरीन जो है साइज छोटा है ना, उसको क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि स्टेबलाइज होने के लिए। बाहर में कितने होते हैं, 2,7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है। वो जब पानी में डाल देते हैं ना उसको, तो इलेक्ट्रॉन मिलने का चक्कर में वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। सो बिकॉज जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, तो जल्दी अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ इजीली, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ इजीली ना, जल्दी ना एक्सेप्ट कर लेता है ना, इसलिए इसका SRP सबसे ज्यादा है। अगर वैसे देखा जाए फ्लोरीन से और थोड़ा कम मात्रा किसका है, क्लोरीन का होगा ना, क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है। जब क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी स्लो हो जाएगा ना, स्लो कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, सो कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, इट हैज आल्सो रिड्यूसिंग टेंडेंसी, बट इसका SRP वैल्यू कितना है पता है, क्लोरीन का SRP वैल्यू है इससे थोड़ा कम, थोड़ा मतलब ज्यादा ही कम, 1.36। देन उससे थोड़ा और भी कम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ब्रोमीन का है, क्योंकि साइज और भी छोटा हो जाएगा, तो इसमें बोल सकता हूँ कि स्लो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी स्लो कंपेयर टू क्या होगा, क्लोरीन होगा।
इसलिए जल्दी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका SRP वैल्यू है 1.09। ठीक है। एंड फाइनली आपका आयोडीन, आयोडीन जो भी है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका साइज एक्सट्रीमली बड़ा है। सारे हेलोजेंस में से आयोडीन का साइज एक्सट्रीमली बड़ा है, इसलिए ऐसा रिड्यूस जल्दी नहीं हो सकता है। सबसे स्लो है, स्लो कंपेयर टू क्लोरीन लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्लोरीन लिख सकता हूँ। ब्रोमीन जो है ना, क्लोरीन एंड फ्लोरीन से भी स्लो है। आयोडीन भी जल्दी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इसका SRP वैल्यू कितना दिया गया है, 0.54 वोल्ट। समझ गए। तो आपका इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी आपको समझा चुका हूं। तो ये चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका SRP सबसे ज्यादा होता है ना। जिसका SRP सबसे ज्यादा होता है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा खुद, एंड दूसरों को क्या कर लेगा, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो फ्लोरीन दूसरों को क्या करेगा, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग reducing tendency, strong reducing tendency किसका है गाइस, जल्दी कौन रिड्यूस हो जाएगा, F2 जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। एंड और कौन, F2, उसके बाद और क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यहाँ पे मैं एटम्स के बारे लिखा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझने के लिए ट्राई कीजिए। अगर 2 लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2 लिख रहा हूँ मतलब 2 लेना पड़ेगा, एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना। यस। तो ये क्या है आपका रिड्यूसिंग टेंडेंसी, क्या आपका ये रिड्यूसिंग टेंडेंसी। तो जल्दी रिड्यूस कौन होगा, फ्लोरीन रिड्यूस होगा। फ्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ये आपका रिड्यूसिंग टेंडेंसी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसका होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसका होगा, किसका होगा। देखिए अगर घुमा दें I2 को क्या बन जाएगा, I-1 माइनस को क्या होना है, ऑक्सीडाइज होकर पीछे जाना है ना, इसको भी ऑक्सीडाइज होना है। ये क्या बनेगा, ये 2I माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा 2Br माइनस बनेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज होकर पीछे जाना है। ठीक है। और ये क्या बनेगा 2Cl माइनस बनेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करके पीछे जाना है। तो अगर पीछे जाना है तो आप क्या करोगे, इसको घुमा देंगे ना, SRP वैल्यूज को, SRP वैल्यूज को क्या घुमा देंगे। जब घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, -0.54, ये क्या हो जाएगा -1.09। ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसका होगा, जिसका SRP वैल्यू सबसे कम है ना। तो इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, देखिए -1 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, ये आपका SOP हो जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा SOP। तो SOP सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका ही होगा ना, -0.54। तो अगर रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऐसा है तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इसका ऑपोजिट होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। वैल्यूज देखिए I माइनस का ज़्यादा है, उसके बाद Br माइनस है, उसके बाद Cl माइनस है, उसके बाद F माइनस है। बट ये सबके सब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी वाटर के वैल्यू से कंपेयर करके, आपको होमवर्क है, कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कंपेयर विथ इन लोगों का पोजिशन देखिएगा सीरीज में। ठीक है, आपको होमवर्क है। ठीक है, ये आपका बता दिया मैं। हम 2-3 एग्जाम्पल और भी डिस्कस कर लेंगे आपका चीज़ को क्लियर करने के लिए, लेकिन ये सब ऐसे होता है। ठीक है गाइस, एनियंस के लिए बताया था। ठीक है, 2-3 बार देख लीजिए वीडियो, अगर आपको समझ नहीं है तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। देखिए अगर आपका ये SRP SOP आपका अगर क्लियर नहीं हुआ पिछले वीडियो का, तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो, अंडरस्टैंड दैट SRP एंड SOP, देन कम हियर। ठीक है, अगर वो आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज फॉरगिव। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वीडियो फर्स्ट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस video. Okay, and I've heard that some of you are muting the video and just writing the things which are in the video, which are in the pages. This is not good, so you need to understand the things, नहीं तो आप फंस जाएंगे बाद में। I cannot help. Okay, yes, some other examples. So हमने 2 एग्जाम्पल दिखाया अभी तक। ठीक है, वो भी दोनों भी हम लोग किसका टर्म्स में देखा है, दोनों का दोनों हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स से। अगर हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे, तब क्या होगा। एग्जाम्पल 3,
अभी हम लोग लेने वाले हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो क्या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड इनेर्ट इलेक्ट्रोड्स में दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे कि अलग होंगे? लेट्स सी। नाउ वी आर टेकिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। यस, लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। Electrolysis of silver nitrate solution using silver electrode, AgNO3 solution using सिल्वर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखिए कितने फैक्टर्स हैं। सॉल्यूशन मतलब कुछ सॉल्यूशन ध्यान मतलब ऑब्वियसली समझ जाए कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपका है एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, यस। नाउ द पॉइंट हियर इज, यहाँ पे कौन कौन है देखिए। अब हमेशा जब भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज बना। यस, सो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन कौन आएगा, AgNO3 को तोड़ना चाहते हो ना, करंट पास करेंगे तो बन जाएगा ऐसे Ag प्लस NO3 माइनस। एक्वा सोल्यूशन भी है मतलब वाटर भी है, एंड इलेक्ट्रोड्स भी सिल्वर के हैं, इलेक्ट्रोड्स भी आपका सिल्वर के हैं। सो एनोड पे क्या होता है गाइस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो अगर ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो एक चीज बताइए, एनोड किससे बना हुआ है, एनोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है ना। तो सिल्वर चाहेगा कि नहीं ऑक्साइड होने के लिए, सिल्वर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहेगा कि नहीं, हम वो भी कंपेयर करने वाले हैं सबको। ठीक है, नो द पॉइंट इज हमारे पास क्या क्या है देखिए। Ag रॉड इलेक्ट्रोड जो है वो चाहेगा कि हम भी ऑक्सीडाइज हो जाएं, है ना। तो क्या चाहेगा वो, Ag विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहेगा। और पानी भी है वो भी ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहेगा। पानी अगर ऑक्सीडाइज होता तो क्या बनता है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और कौन है, और कोई है ऑक्सीडाइज होने के लिए, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, NO3 माइनस भी है, नेगेटिव वाला प्लस के पास आएगा ना। तो NO3 माइनस का अगर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, अगर NO3 माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, हमारा सीरीज हमारे टेबल में है कि नहीं NO3 माइनस, देखिए NO3 माइनस दिया गया है। NO3 माइनस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, हाँ अगेन मैं आपको बताया था ये जो कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं उसको हम लोग अलग से रखते हैं। ठीक है, उसको इतना जल्दी लिख सकते हो उसका रिएक्शन, बट मैं आपको बताया था ये, है ना, ये दो चीज़ बताया था शायद ना, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, एंड इसको भी आप ले सकते हो NO3 माइनस। तीनों के तीनों आपका SOP वैल्यूज जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। SOP वैल्यू ज़्यादा मीन्स व्हाट, सॉरी कम, SRP वैल्यूज ज़्यादा होते हैं, SRP ज़्यादा SOP कम। देखिए ये दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्ड वाला मिस हो गया था, यहाँ पे आ गया SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, है ना। इन दोनों को क्या है, SRP ज़्यादा है, लो SOP, इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। लो SOP मीन्स व्हाट, इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अगर इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो इसको छोड़ सकता हूँ। बाकी इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन, Ag अगर ऑक्सीडाइज होगा इसका SOP वैल्यू देखना है, Ag प्लस, Ag से Ag प्लस, इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो Ag का अगर देखा जाए फ्रॉम द टेबल, Ag का वैल्यू कितना है, ये आपका वैल्यू दिया रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको टेबल से यूज़ करना पड़ेगा। Ag का SOP वैल्यू है -0.80 वोल्ट, एंड H2O का SOP वैल्यू है, H2O क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O का SOP वैल्यू है कितना, हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना। SOP क्या था, ऑक्सीडाइज क्या था पहला केस में, सबसे पहला केस आपको याद है, आपको याद है कि याद नहीं है। अगर इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो इसका वैल्यू है -1.23 वोल्ट। तो इसका ये SOP, ये इसका SOP, दोनों में से कौन जीतेगा,
दोनों में कौन जीतेगा बताइए, जिसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो Ag का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे Ag इलेक्ट्रोड जो था, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड था वो खुद पार्टिसिपेट कर लिया, ना पानी को करने दिया ना NO3 माइनस को करने दिया। ऐसा NO3 माइनस को होता नहीं क्योंकि उसका बेचारा SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्लियर गाइस, ये SRP हमारा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, आप अगर इंटरनेट से मिलना देखना चाहोगे तो मिल जाएगा, बट ये तीनों का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल कर दे रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ों को सब सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन एट जब सिल्वर हुआ, आई मीन एनोड हुआ, तो आपको क्या ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे दूसरा पे चलते हैं, दूसरा क्या है, रिएक्शन एट कैथोड, दूसरा है रिएक्शन एट कैथोड। अगर रिएक्शन एट कैथोड अगर देखा जाए, ठीक है, कैथोड में कौन आएगा, ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव आएगा। एंड ये भी किससे बना हुआ है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, रॉड है, सिल्वर रॉड, तो ये रिड्यूस होगा, मेटल्स रिड्यूस होते हैं, कैन इट फॉर्म Ag माइनस, नो, तो इसका रिडक्शन नॉट पॉसिबल। तो रॉड का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, रिडक्शन नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे एक्टिव होने पर भी चुप रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। बाकी कौन बचे हैं, Ag प्लस सोल्यूशन का है, फ्रॉम सोल्यूशन Ag प्लस है, और कौन है, वाटर भी है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन सकता है, Ag बन सकता है। इसका पोटेंशियल कितना है, 0.80 वोल्ट, ये क्या है आपका, रिड्यूस हो रहा है ना, तो SRP देखना है। वैसे H2 अगर रिड्यूस होगा, इसका पोटेंशियल भी दिया गया है, कितना दिया गया है, H2 अगर रिड्यूस होगा तो कितना है, -0.83 वोल्ट, ये भी आपका SRP है। दोनों SRP में से किसका SRP ज़्यादा है, किसका SRP ज़्यादा है, इसका SRP ज़्यादा, तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अभी सिल्वर का ही रिड्यूस होगा, तो पानी का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट्स, एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड क्या हो रहा है, Ag जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, या आपने सॉलिड लिया था, ये एक्वस के अंदर जा रहा है। देन वैसे कैथोड पे क्या हो रहा है, वही कैथोड पे क्या हो रहा है गाइस, देखिए Ag प्लस जो बना था सॉल्यूशन में जो है ना, वही देखिए Ag प्लस जो सॉल्यूशन का है वो क्या हो रहा है, Ag सॉलिड बन रहा है। मतलब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, नहीं क्या, देखिए एनोड से धीरे धीरे सॉलिड कहाँ चले जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर चले जा रहे हैं। एंड कैथोड में सॉल्यूशन से जो Ag प्लस है वो निकल के कहाँ बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, Ag बन जा रहा है ना। तो धीरे धीरे आप अगर इसका सेटअप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप अगर इसका सेटअप देखेंगे, यहाँ पे एक Ag लगा है और मान लीजिए यहाँ पे एक Ag लगा है, दोनों पहले से पतला ही होंगे, सेम साइज का ले लेते हैं, ठीक है, दोनों Ag का है, Ag ये भी Ag, दोनों कनेक्टेड है सोर्स से, एंड यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन है, पानी है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 ये पतला होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यों ऐसे, क्योंकि ये गायब होएगा और यहाँ पे ऐड होते जाएगा। क्यों ऐसे, देखिए Ag से सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन के यहाँ जा रहा है, रेड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे रेड्यूस हो रहा है। तो ऐसे करने पर आपका क्या होगा, ऐसे करने पर आपका देखिए ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक इम्प्योर सिल्वर रॉड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इम्प्योर सिल्वर रॉड। तो इसमें प्योर Ag आयंस क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, एंड इम्प्योरिटीज जो भी रहेंगे वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। एनोड मड मतलब जो है इम्प्योरिटीज है, जो कि सिल्वर के साथ था, जिसको आपको प्यूरिफाई करना था, वो धीरे धीरे जो प्योर सिल्वर जो ऑक्सीडाइज होते जा रहा है वो धीरे धीरे किस में जा रहा है, एंड इसमें आप क्या रखोगे, पहले से प्योर सिल्वर रखोगे रॉड, तो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, तो यहाँ पे सेटल होते जाएगा, समझ में आ रहा है ना। कैथोड पे कैथोड मोटा होते जा रहा है, एनोड पतला होते जा रहा है,
एनोड पतला होते जा रहा है, कैथोड मोटा होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप इम्प्योर सिल्वर रॉड को रखेंगे और यहाँ पे प्योर सिल्वर रॉड को रखेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस हम रिफाइन कर रहे हैं ना, इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं ना। इम्प्योरिटीज तो बेचारे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे वो लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली रिफर्ड एज आल्सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, सो ये एक एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, तो मैं आपको दो प्रकार के एग्जाम्पल बताया, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड, देन आपका मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जैसे बताया वैसे आप अगर याद रख लोगे तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। अगर वैसा नहीं होगा देन यू विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द थिंग्स वेरी क्लियरली इन योर नोट एंड प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन। आपको ये SRP SOP का चक्कर अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज गो टू दैट प्रीवियस वीडियोस एंड अंडरस्टैंड दैट। See, I'm trying to give everything. Again, it depends upon you how much you are serious. Okay, guys. Thank you very much for your attentive hearing. In the next video, we'll be discussing about Faraday's laws of electrolysis. ठीक है? तो माइकल फैराडे जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग लॉज बनाए थे जो लोग हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो कि ठीक है। थैंक यू गाइस।